A very good morning to all of you, to all the dear students. As we have yet started the second semester and you all have been promoted to the second semester, so we are going to start up with a new syllabus, new chapter, and all the things. So we are starting up with the paper 4, Role of Social Sciences in Mass Communication. Now, what exactly would you understand by the role of social science in mass communication? So, here in Unit 1, we will be learning all the basic and important factors, which are like historical background of social science, media and sociology, social groups, family, community, and institutions, social science, its types and agents, media and social change, and the last topic that we will be covering in Unit 1 is technology of social changes. So, here before starting this social science role, what do you understand basically about the social science factor in mass communication? It is something, a discipline or a branch of science that deals with human behavior. In it, it tells us about the social and cultural aspects. So, social science includes all your cultural activities, like which depends on your cultural anthropology, sociology, social psychology, political science, and economics. So, if we start off with social science, it is allowed like सोशल साइंस इज़ बेसिकली अ सामाजिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मीन्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो जैसे कि मास कम्युनिकेशन इज़ लाइक जन संचार माध्यम, राइट। तो उसके सामाजिक परिवर्तन एवं जो स्वरूपरण है, जो उसके महत्वपूर्ण है, जो उसकी भूमिका है, उसको किस तरीके से दर्शाते हैं। पत्रकारिता एवं जनसंचार सामाजिक कृतियों के द्वारा करते हुए बेहतरीन जिस तरीके से हम अपने संदेश को, अपने मैसेज को वन यूनिट फैक्टर से जब हम दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, when we send our message from one particular group to the another, that is the mass communication. And सामाजिक विज्ञान एक अनुशासन है या शाखा है जो अपने सामाजिक और संस्कृति के पहलुओं को मानव व्यवहार से संबंधित करती है। So this is what a social science is, a discipline or a branch of science that deals with the human behavior in its with the social and cultural aspects. Social science includes the cultural anthropology, sociology, social psychological, political science and economics. सामाजिक विज्ञान में जो है आपकी संस्कृति, नविज्ञान, समाज शास्त्र जैसे एंथ्रोपोलॉजी जिसे बोलते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान दैट इज़ द सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एंड अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सीखने से सामाजिक संदेशों और आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए क्या चीज़ें होती हैं, स्कूल, कॉलेज, इन सब चीज़ों को अवेलेबिलिटी दी जाती है जिससे कि एक एजुकेशन, एक नॉलेज, एक गाइडेंस मिल सके। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स वेयर अ ह्यूमन personally learn and get into the relationships of schools and the social order, right? Then we move on to the next paragraph.
The study of social life of human individuals and how they relate to each other in all types of groups is called the social science. यानी मानव व्यक्तियों के सामाजिक जीवन के अध्ययन और वे सभी प्रकार के समूहों में एक दूसरे में कैसे संबंधित हैं, इसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है. Usually it includes under this broad umbrella another concerns of the history where all sorts of subjects are related like geography, political science, economics, psychology, social science, sociology, cultural studies, social studies. This all includes the factors of social science. मतलब आम तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला. सोशल साइंस इज़ अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला जहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं. इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और सामाजिक अध्ययन के जितने भी विज्ञान हैं ये सारे के सारे आपके सोशल साइंस का एक पार्ट है एंड दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. So there is no consciousness on which the subjects belong among the social sciences. Historicals, for instance, usually consider that they are subject to belong to the humanities along with the literature, languages, philosophical and the arts. So it is probably the best to consider the history as standing somewhere between the humanities and the social science. So this is a kind of umbrella जहाँ पे ये है इस बात को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सहमत नहीं है कि कौन से विषय में सामाजिक विज्ञान के बीच में हमें रखना चाहिए. जैसे कि जो इतिहास सभा है आमतौर पर साहित्य, भाषा, दर्शन और कलाओं के साथ मानव विज्ञान से संबंधित अपने विषय पर विचार करते हैं. शायद इस वजह से जो इतिहास है मानविकी है और सामाजिक विज्ञान के बीच में कहीं ना कहीं खड़ा होने और सबसे अच्छा माना जाता है. सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग विद योर सोशल साइंस फैक्टर कि ये सारी चीज़ें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कितनी इम्पोर्टेंस मैटर करती हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस का एक रिलेशनशिप बनाते हैं. सो वी नीड टू नो द सोसाइटी थॉरली to understand the needs of different sections of society because we live in a society that depends on information and communication which in terms helps the society to move in the right direction. मतलब हमें समाज के विभिन्न भागों की ज़रूरतों को समझने के लिए समाज को अच्छी तरह से जानना होगा. नेचुरल है. जब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटेल में नहीं समझेंगे तो हम उसकी नीड्स, उसके एलिमेंट्स, उसके फैक्टर्स को कैसे समझेंगे. क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे जो सूचना और जो संचार पर निर्भर करता है. कोई भी आपको न्यूज़ अगर मिलती है तो नेचुरल है अभी तक जो एक लेटेस्ट ट्रेडिशन की बात करते हैं हम तो वहाँ पे जो आपको जो भी एक न्यूज़ वेरिफिकेशन मिल रही है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू मिल जाती है. अब तो हर चीज़ के ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे आपको सारी एक जर्नल इंफॉर्मेशन, न्यूज़ जैसे हम कहते हैं या फिर सूचना हो या संचार हो वो आपको मिलती रहती है कि जो बदले में आपको समाज को सही दिशा में ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. अगर यही चीज़ें जैसे गांव में है और उनके पास मोबाइल नहीं है तो नेचुरल है उनको सिर्फ एक उड़ती खबर मिलेगी कि ऐसा ऐसा है. एक जर्नल नॉलेज अगर कहीं से चाहिए लेटेस्ट ट्रेडिशन में तो नेचुरल है वो हमको डिजिटल फॉर्मेट में न्यूज़ के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू हमको मिलती रहती है. और ये डे बाय डे जो इसका as it helps in accomplishing the day by day activities
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें डे बाय डे कहीं ना किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इट विल गिव यू द एजुकेशन, इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ केयर, फूड, ट्रैवलिंग, रिलेशनशिप्स एंड अदर्स डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो जब तक हमको कहीं अच्छे से जानकारी मिल रही है, तो वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें एक नॉलेज दे रहा है, हमें एक ज्ञान दे रहा है, हमारे एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, देखभाल में, हमारे भोजन में, हमारे ट्रैवलिंग यानी यात्रा संबंधित से रिलेटेड हमारी गतिविधियों को समझता है। सो इफ़ वी look for our daily schedule, one cannot go to an isolation with media, or we can say that media is in a habit to use the radio and TV act as a fillers in our lives. They tend to fill in the vacuums, right? So we are in a habit to understand, to read those things and to get the knowledge, to get the information. Either it's a matters of good enough sufficiency of loneliness. Now when we go outside, we used to watch the things like hoardings, outdoor medias, banners that we cannot avoid. We are not used to avoid. जब कहीं कोई एक बहुत अट्रैक्टिव होर्डिंग होता है, तो हमारी ऑटोमेटिक उस पर आँख नज़र पड़ जाती है और फिर हम उसको पढ़ने के लिए, देखने के लिए कहीं ना कहीं एक बार तो नज़र मारते हैं. So similarly is the things with the newspaper updates also about the happenings all over the world. जो आपका समाचार है, समाचार पत्र दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें अपडेट करता है. सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, नए रिश्ते बनाने में और पुराने बनाने में सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं. तो सोशल नेटवर्किंग, if we talk about, that's a social science. It's a website that are self-explanatory in the terms of creating new relationship, नए रिश्ते बनाने, पुराने रिश्तों को समझना. सो हम कैसे कर सकते हैं इन सबको? समाज शास्त्र से. सोशियोलॉजी एंड द मास कम्युनिकेशंस आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो कहने का मतलब ये है कि जो हम अपना इस टॉपिक से रिलेटेड है, रोल ऑफ सोशल साइंस इन मास कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो गए. जो सोशल साइंस है, जो सोशियोलॉजी है और जो मास कम्युनिकेशन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, राइट? So this is what the topic we have discussed today. Just go through this video and understand the notes. It is being uploaded and given to you in the format of English as well as in Hindi. And whatever the doubts if you're having, you may just consult to me through the calls and just start preparing according to it. Thank you, students. Have a good day.